Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज कॉपी करना है जल्दी से। इवन मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, कॉपी करते जाओ। Path of traveling is straight from cathode with a very high velocity as it produces shadow of an object placed in its path. Can anyone explain how it is creating? How can we explain this first point? जितना मैंने last class में बताया है, based on that, can anybody explain? Sir, may I? How? Yes. Sir, that producing shadow of the object to do with that ZNS split having white spots. Yes, exactly. Shadow means basically we are not getting white spots in that particular region. When we put any opaque object, तो हमें white spots मिलना बंद हो गए थे. तो ये उसके respect में point है. Cathode rays produces mechanical effect if small pedal wheel is placed between the electrodes, it rotates. ये हमें already पता ही है second point. Nothing is new. When electric and magnetic field are applied, cathode rays behave as a negatively charged particle. Third point, ये भी हमें पता है. Fourth one, they produces a green glow when strike the glass wall beyond the anode. Light is emitted when they strike the zinc sulfide screen. ये जो point है ना, fourth point, do not highlight anyone. कोई भी ऐसा मत करो बीच में. They produces a green glow when strike the glass wall beyond the anode. Basically, they can generate X-rays. वो cathode rays जब ZNS प्लस से स्ट्राइक होती है तो कुछ रेडिएशंस जनरेट कर सकती है. ये काफी डिटेल में क्या कर रहे हो बच्चे जैसी हरकतें. रुको, मैं अभी हटा देता हूँ एनोटेशन का ऑप्शन. कहाँ पे आता है वो ऑप्शन? नहीं दिख रहा मुझे भी कहाँ पर. छोड़ो, बट ऐसी हरकतें मत करो. क्या ओके. Cathode rays penetrate through thin sheet of aluminum and metals. So यदि कुछ thin sheet रही जिसकी thickness काफी कम रहेगी, they can penetrate through them. उन्हें क्रॉस कर जाएंगे. thickness ज्यादा होगी तो क्रॉस नहीं कर पाएंगी. They affect the photographic plates. photographic plates को affect कर सकती हैं. They can picturize something. ठीक है. और इसका एप्लीकेशन होता है जो पुराने टीवीज हुआ करते थे ना, उन टीवीज में तुम्हें ध्यान होगा बॉक्स टीवी हुआ करते थे. तो उसमें कैथोड रेज रहा करता था. कितने बच्चों ने देखा है? हैंड रेज करो अपने. वो बॉक्स टीवी जो पुराने टाइम पे हुआ करते थे, अराउंड
late 90s, early 2000? Yes, sir. अच्छी बात है, काफी बच्चों ने देखा है। तो बाय चांस, मतलब अब मुझे तो अपने बचपन का काफी कुछ याद है उसमें कि क्या हुआ करता था उसमें, जब उसको रिपेयरिंग हुआ करती थी ना वो सीबीटी, तो तुमने देखा होगा उसमें एक एल्यूमिनियम सा कुछ ऐसा बॉक्स बना रहता था पहले ऐसा, और फिर उसकी बिट बढ़ती जाती। तुम शेयर्ड स्क्रीन और बोर्ड पर स्विच कर पा रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. तो उस शेप का वो रहता था, वो बेसिकली कैथोड रेज रहती थी, और हमें टीवी पे जो पिक्चर्स दिखते थे, जो भी पिक्चराइजेशन टीवी पे हो रहा होता था बिकॉज ऑफ द कैथोड रेज। The charge by mass ratio of cathode rays are constant irrespective of gas and Sir. material used. Yes, बोलो। सर फोटोग्राफिक प्लेट्स मतलब? फोटोग्राफिक प्लेट मतलब जिसपे किसी की फोटो को लिया जा सके, किसी को पिक्चराइज किया जा सके। ओके। Last point is also quite useful. Charge by mass ratio of cathode rays is independent of electrode use. हम इलेक्ट्रोड वहां पे मेटल का जो इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड है, वो मैग्नीशियम का है, जिंक का है, सीजियम का है, किसका है उससे इंडिपेंडेंट है, as well as it is independent of the gases present in the glass tube, in the discharge tube. कॉपी कर लिया है क्या सभी ने इतना? नहीं सर। हो गया अभी कॉपी? नो सर। नो सर। अंजलि एंड अर्जुन कंफर्म करना जब भी कॉपी हो जाए, मैं वेट कर रहा हूँ।
अंजलि राठौर कॉपी कर लिया है? मेरा हो गया। हो गया है सर। ओके चलो, मुझे एक लास्ट पॉइंट था लिखा हुआ, the cathode rays, their nature is independent of electrode used and the gas present inside the glass tube. यदि ऐसा कुछ हो रहा है, can we say that whatever the cathode we are using, whatever the gases we are using, the electrons will always have similar properties, same property, they are identical. मतलब हमने cesium लिया, magnesium लिया, chlorine लिया, whatever we are taking here, the electrons are always identical, means they are the fundamental constituent of any substance. इलेक्ट्रॉन चाहे वो हाइड्रोजन से आए, हीलियम से आए, लिथियम से आए, बेरिलियम से आए, जहां से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, they are always identical. ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन सोडियम के इलेक्ट्रॉन से अलग होगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन हम एक नॉन मेटल ले लें, लेट्स से कार्बन ले लें, फिर उससे अलग होगा। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी आइडेंटिकल। एक बार एटम से बाहर आ गया तो हम बता नहीं पाएंगे वो किसका इलेक्ट्रॉन। इज दैट ओके? यस यस सर। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तुम्हें भले ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या है एग्जैक्टली। यस, यू कैन राइट दिस हेडिंग। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने की थी एंड थ्रू एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। द सेटअप इज सेम एज ऑफ कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। सेटअप में कोई चेंज नहीं था, सेम सेटअप था। सिर्फ ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड मूव कर रहे हैं इन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी आर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस in the order of 10,000 volt, इतना हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, then cathode rays can be emitted from cathode moving towards the anode. We have certain gases inside the glass tube. Definitely the pressure of gas is very very less, but still we have some molecules of gas. Let's say हमने ले लिया हीलियम गैस यहाँ पर, ठीक है? हीलियम गैस लिया, हीलियम में दो प्रोटॉन्स होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Protons and electrons are present. Protons and neutrons are present at the nucleus of the atom, and two electrons are present in first orbit of the atom. जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड मूव कर रहा होगा, it may be possible that moving cathode rays, that moving electron will strike to the electron of this particular gas. यदि वो स्ट्राइक होता है, लेट्स से ये गैस है, गैस में एक इलेक्ट्रॉन अटैच है, ये पूरा उसका न्यूक्लियस, पूरा एटम, अब वो इलेक्ट्रॉन आके इससे स्ट्राइक हो जाता है और इतना एनर्जी इसमें सप्लाई कर देता है so that it can de-attach to the nucleus, de-attach to the atom, ये उससे de-attach हो गया। क्लियर? अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास He से He+ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेगा कैथोड रेज के साथ। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन गया है, बताओ, this positive ion, gaseous ion will move towards which terminal? ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ करेगा या वहीं पे रहेगा? क्या लगता है, क्या करेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative.
it will move towards negative terminal. If it moves towards negative terminal, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज था इस आयन में, और हमने वो सारे ऑब्जर्वेशन जो लास्ट केस में लिए थे ना, कैथोड रेज को यहाँ पे भी किए, ब्लॉक किया, कुछ यहाँ पे फॉस्फोरेसेंस मटेरियल रखा और इसकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया। So जैसे हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी की, सिमिलर में एनोड रेज की आ गई, but there is a slight difference in cathode rays and anode rays. Cathode rays are generated by cathode, but anode rays are generated in between cathode and anode due to ionization of gas. The word ionization, gas को आयन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस is called gas ionization. हमारे पास न्यूट्रल गैस थी, उसे हमने आयन में कन्वर्ट कर दिया, इसे आयोनाइजेशन कहा जाता है। Is that okay? He से He प्लस चले गए हम, आयोनाइज हो गया, पॉजिटिव आयन इस तरफ मूव करेगा, इसकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया, यहां से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अच्छा, जो गैसेस आयन He प्लस, दिस इज नॉट द प्रोटॉन, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन बट एनोड रेज आर नॉट द प्रोटॉन, दे आर पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन, और इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ कम हो गए हैं, प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं, इसके प्रोटॉन्स के बारे में यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो कुछ थोड़ा डिफरेंस है कैथोड रेज एनोड रेज में, वो लिख भी लेते हैं। चलो लिखो, फर्स्ट पॉइंट इतना लिखा हुआ, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखना है व्हेन, मैं लिख देता हूं, चलो बोर्ड पे, कंफ्यूजन नहीं होगा।
कॉपी करो, तो कुछ डाउट होता है ऐसे एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा। संजना का डाउट है सर, इन कैथोड रेज एंड एनोड रेज एक्सपेरिमेंट gases that has to be used are same or not? They can be same or maybe different, that doesn't matter. Even we can change the gas. Gases are not fixed. हमने डिफाइन नहीं किया कि गैसेस यही होनी चाहिए, गैसेस कैन बी एनीथिंग, जो भी अवेलेबल है वो, इवन एयर है तो एयर को भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है गैसेस। When cathode rays moving from cathode to anode, they can strike gases present and can remove their electron to convert them into positive ion. So gases को positive ion में convert कर दिया गया. This positive gases ion move towards cathode away from anode. अच्छा, वैसे तो ये anode से generate नहीं हो रही है, still इन्हें anode rays कह दिया गया. Cathode rays cathode से generate होती है और cathode से दूर जाती है. Anode rays anode से generate नहीं होती, still they are going away from anode. That's why they are called anode rays. Clear? So difference क्या है? They are not generated by anode, they are generated in between cathode and anode. पहला difference cathode rays anode rays. Anode rays characteristic depends on nature of gases present. They are not protons, they are gaseous ions. तो जो gases present है उनका charge क्या है, उनका mass क्या है, उन पे depend करेंगे. Clear? जबकि एनोड रेज में ऐसा नहीं था, सॉरी कैथोड रेज में ऐसा नहीं था. कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ गैसेस यूज, नेचर ऑफ गैसेस यूज यहाँ पे अलग है. तो ये लास्ट के दो पॉइंट, दे आर द डिफरेंस बिटवीन कैथोड रेज एंड एनोड रेज. क्लियर उतना? सर एक डाउट बोलो Sir, also we can see that सर. without एनोड रेस का तो एक मिनट, एक बोलो. अर्जुन बोलो. सर एनोड रेस का तो पता चल गया, पर उसकी वजह से प्रोटॉन कैसे पता चला? क्योंकि इधर कुछ तो लगा ही नहीं था ना कि स्पॉट्स वगैरह पता चलेंगे हम. प्रोटॉन कैसे पता चला ये भी बताता हूँ. अनदर क्वेश्चन. sir, so for producing the anode rays, we have to first produce cathode rays. Means that experiment is dependent on the cathode rays experiment. So both experiment are same. The only difference is our observation. Initially we were taking observation behind the cathode. Now we are taking observation behind the anode. So the experiment is same, but the way of observing things are different. Excuse me, sir. Yes. Sir, so why no white spots were produced on the ZNS plates when it was placed in front of the cathode? Like anode rays are going from anode to cathode, so they should strike the ZNS plate before going to the cathode. No, I am not getting your question. I think you are asking if we plate ZN is placed in front of cathode, right? This is the question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, if we place in front of cathode, then we get the spots on the spots will be everywhere. Basically, what we had done in the last lecture, we had we made certain holes in the cathode, and just behind the cathode, sorry, just we made certain holes in the anode, and just behind the holes behind the anode, we are getting white spots. That means something is going towards the anode. हम उसके आगे भी रखेंगे, still we get the same kind of observation, but अब वो holes नहीं होंगे, सारी जगह observation मिलेगा हमें. Got it? Yes. Thank you, sir. हाँ, एक क्वेश्चन था कैसे पता चला प्रोटॉन के बारे में, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ.
कुछ एग्जांपल लिए, लेट्स से इफ आई एम यूजिंग हीलियम, दो पॉसिबिलिटी आ सकती थी। हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, He+ बना। हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, He2+ बने। हाइड्रोजन यूज किया होता H+, नियोन यूज किया होता +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ अलग अलग आयंस मिलते। हमने इसका बेसिकली चार्ज कैलकुलेट किया, ठीक है? तो इसका चार्ज का वैल्यू आया 1.6 10⁻⁻19 कूलम विद पॉजिटिव। अभी तक प्रोटॉन के बारे में नहीं पता था, इस पे चार्ज आया इतना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थे तो चार्ज आ रहा था 3.2 10⁻⁻19 कूलम। इस पे चार्ज आ रहा था +4.8 10⁻⁻19 कूलम। So the positive charge that is multiple of 1.6, either it will be 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, 2 times of this, 3 times of this, 4 times of this, 100 times of this, it cannot be 100.5 times of this. फ्रैक्शनल नहीं आ रहा था, तो मेरे पास एक छोटा वैल्यू आया पॉजिटिव चार्ज का, जो हमेशा कुछ भी चार्ज है दैट विल बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस। यहां से हमने थोड़ा सा सोचा, हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी तो नहीं की, स्टिल वी हैड गिवन सम थॉट कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने पे क्यों आ रहा है। इनिशियली एटम वाज न्यूट्रल, इफ वी रिमूव सर्टेन नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज उसमें एक्सेस में हो जाएगा। सो मिनिमम कितना पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है हमें, मिनिमम इतना पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, तो हमारे पास या तो एक प्रोटॉन होगा, एंड दिस प्रोटॉन वी कैन नॉट ब्रेक विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, either we can have 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, और ये एटम से इतना टाइटली बाउंडेड है कि वो रिमूव नहीं होते, तो हमने उसको न्यूक्लियस पे रख दिया। न्यूक्लियस से कुछ भी रिमूव नहीं होगा, जो रिमूव होगा आउटर शेल से होगा। समझ में आया कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई? मतलब ऐसा नहीं कि प्रोटॉन को देख लिया गया, बट वो जो ऑब्जर्वेशन लिए गए उसके बेसिस पे थोड़ा सा थॉट दिया गया, थोड़ा सोचा गया, समझा गया, फिर इस कंक्लूजन पे पहुंचे। गॉट इट? ओके सर। So one doubt. In case of helium gas, how anode ray experiment works? Means what? In हीलियम में 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो एनोड के पास कौन अट्रैक्ट होगा? या सी हीलियम एटम 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मैं n से लिख देता हूं, चलो ये तो न्यूक्लियस के अंदर हो गए। आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, फिर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इफ यू रिमूव वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, बचा कितना? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज क्या हो गया? +1। अब +1 है, दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेयर? पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, तो एक कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया वो एनोड की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सर यहाँ पर दोनों तरफ अट्रैक्ट हो रहे, तो मतलब कैथोड रे या एनोड रे ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि उस ट्यूब में कैथोड रे या एनोड रे, तो उसका आंसर है बोथ आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम, कैथोड रेज एज वेल एज एनोड रेज। Cathode rays are going from cathode to anode, anode rays are going away from anode towards the cathode. तो दोनों एक साथ ही है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम ऑब्जर्वेशन कहाँ लेना चाहते हैं। क्या इतना समझ में आया? Sir, means whether we are looking for anode rays or cathode rays, we have to decide whether we will have holes in the anode or cathode. Yes, exactly. Both are present in the same experiment. The cathode rays experiment also has anode rays, but it depends on us. We want to take observation for cathode rays, or we want to take observation for anode rays, right? Question है ओमकार का, why electron loses, why helium loses electron? देखो, electrons, any substance has electron in its outer shell, inner shell में भी हो सकता है, outer में भी हो सकता है। बाय चांस हीलियम के पास तो एक ही शेल है, वही इनर वही आउटर हो गया। सो इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द एटम ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस।
पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन है, इसलिए वो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या किसी भी अट्रैक्शन को हम एनर्जी सप्लाई करके एक दूसरे से दूर कर सकते हैं? सिंपल सा है, इन दोनों में अट्रैक्शन है। क्लियर? मैंने थोड़ी एनर्जी सप्लाई की है, नहीं दूर हुए, मैंने और ज्यादा एनर्जी सप्लाई की है, एक दूसरे से दूर हो गए इलेक्ट्रॉन और एटम। So if we supply energy, we can remove the force of attraction. तो मैग्नेट है, अट्रैक्टेड है, तुम फोर्स लगाओगे, एनर्जी सप्लाई करोगे तो दूर हो सकते हैं। Is that okay? रिएक्शन लिखो जल्दी से। देखो, जेम्स चैडविक वाज परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट, सम न्यूक्लियर रिएक्शंस। उसका कहीं भी मोटिव ये नहीं था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करनी है। बाय चांस न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया व्हेन ही वाज बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल विद द बेरिलियम न्यूक्लियस, जिसका मास 9 यूनिट, चार्ज 4 यूनिट था, अल्फा चार्ज 2 यूनिट, मास 4 यूनिट है। जब इनको बम्बार्ड कर रहा था उसे कार्बन मिला। Clear? Then he took observation. The total charge here in the reactant side 4 plus 2 6, in the product side 6. The total mass 9 plus 4 13. But यहाँ पे तो mass 12 आ रहा था. So definitely we उसे ये कुछ फील हुआ, एक यूनिट मास कहाँ पे जा रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है एक यूनिट मास। Then he covered the whole experiment and he found this particle which has 0 charge and 1 unit mass. तो सबसे पहले न्यूट्रॉन हमें यहाँ से पता चला, जो हमने चार्ज और मास को कंजर्व किया। रिएक्टर में जितना चार्ज है मास है क्या उतना प्रोडक्ट में है नहीं है, तो कहाँ जा रहा है, फिर वहां से डिस्कवरी हुई। ये वन ऑफ द पॉसिबल रिएक्शन है। और भी अलग अलग बुक्स में अलग रिएक्शन मिल सकते हैं। जेम्स चैडविक ने ऐसा नहीं कि एक ही ये रिएक्शन परफॉर्म किया था, बेस्ड ऑन सच काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस उसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। और भी ऐसे बहुत सारे रिएक्शन। इज दैट ओके? So it means when he bombarded that beryllium with alpha particles, did those atoms rearrange the protons and neutrons and become carbon atoms? Basically, nucleus of alpha particle, nucleus of beryllium, they merge with each other, and they are merging and they are giving some two new product. One is carbon, that is nucleus and outer electrons of carbon. Another is neutron. Then So sir, in the what? nuclear reaction, nucleus merge with each other, and that produces one or maybe more than another nucleus. So it means he produced one element from another completely different element. Yes. So in the nuclear reaction, the elements will change. Hence, for the nuclear reaction, we cannot use law of conservation of atom. जितने बेरिलियम के एटम यहाँ पे उतने यहाँ पे होंगे. We can't use such kind of thing. न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस चेंज होता है, एलिमेंट चेंज हो जाते हैं. ठीक है? चलो.
सो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, प्रोटॉन की डिस्कवरी की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। नाउ जे थॉमसन